Assalamu alaikum, namaste dear students. Today we are going to learn about life cycle of an angiosperm. Dear students, जैसा कि हमने पहले दूसरे ट्रेकियोफाइट्स की लाइफ साइकिल पढ़ी थी डायप्लोहैप्लॉन्टिक, बिल्कुल उसी तरह एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल भी डायप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, जिसमें पहला जनरेशन स्पोरोफाइट डिप्लॉइड, दूसरा जनरेशन गैमेटोफाइट हैप्लॉइड एंड देयर इज अ स्पोरिक मियोसिस, स्पोर्स मियोसिस में फॉर्म होते हैं। ऐसी लाइफ साइकिल को डायप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। So the life cycle in angiosperm is diplohaplontic, in which the first sporophyte phase is diploid and second gametophyte phase is haploid, and there is sporic meiosis. It means the spores are formed by meiosis. The diploid sporophyte phase is the main phase in an angiosperm's life cycle. The sporophyte of angiosperm is differentiated into root, stem, leaves and reproductive organs known as flowers. Here you see the sporophyte is differentiated into roots, stem, leaves and flowers. Flowers are the reproductive organs of an angiosperm. Dear students, जैसा कि हमने पढ़ा कि एंजियोस्पर्म का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फ्लावर है, तो ये भी हेटेरोस्पोरस प्लांट हैं, माइक्रोस्पोर्स भी जनरेट करते हैं, मेगास्पोर्स भी जनरेट करते हैं और दोनों फ्लावर से जनरेट करते हैं। Now angiosperms are heterosporous. They generate microspores and megaspores from their flowers. A flower is the reproductive organ of an angiospermic plant. This is the diagram showing the structure of angiospermic flower. This is stalk of an individual flower known as pedicel. Pedicel is the stalk of an individual flower. Here you see the rounded knob of pedicel that bears 4 types of floral leaves. This is called receptacle, also called thalamus. Dear students, pedicel के टॉप पे जो rounded part है इसको receptacle भी कहते हैं और thalamus भी कहते हैं. So what is receptacle? An enlarged top of the pedicel which bears 4 floral whorls, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium. This is the first whorl, sepals, and sepals are collectively called calyx. अब देखें calyx का फंक्शन कौन सा है. This is first protective whorl. तो sepals नॉन रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं जो कि दूसरे फ्लोरल लीव्स को प्रोटेक्ट करते हैं. उसके बाद पेटल्स जिसके मल्टीपल कलर्स होते हैं, petals are collectively called corolla, and it is the second attractive whorl. क्योंकि इस पे मल्टीपल कलर्स होते हैं पेटल्स के, तो वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए. एंड दिस इज थर्ड whorl known as androecium. Stamens are the male reproductive parts. Collectively the stamens are known as androecium, male reproductive part. It is the third male whorl. और डियर स्टूडेंट्स, इसके जो टॉप पे ये पार्ट है इसको एंथर कहते हैं और इसका दूसरा पार्ट है फिलामेंट. एंथर से माइक्रोस्पोर्स जनरेट होते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. और फोर्थ whorl पे कार्पल्स पाए जाते हैं. कार्पल्स आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड कलेक्टिवली द कार्पल्स आर नोन एज gynoecium. Each carpel is having 3 parts. It is the fourth female whorl. Each carpel is having 3 parts. There is a top, sticky top. The top of the carpel is a sticky knob known as stigma. Stigma के बाद tube like part is. The second long tube like part is known as style, and style leads into third part known as ovary. After fertilization ovary develops into fruit. आप देखिए ovary के अंदर आपको ovules नजर आएंगे. Inside the ovary there are 1 or more ovules. After fertilization ovule develops into seed. और dear students, इन ovule के अंदर megasporangia produce होते हैं और इससे मेगास्पोर जनरेट होते हैं. तो जैसा कि लिखा गया है ये हेटेरोस्पोरस प्लांट है, तो ये एंड्रोशियम के स्टेमेंस के एंथर से माइक्रोस्पोर जनरेट करते हैं और ये ओव्यूल के मेगास्पोरेंजियम न्यूसीलस से मेगास्पोर जनरेट करते हैं. अब हम आते हैं साइट ऑफ माइक्रोस्पोर प्रोडक्शन एंड साइट ऑफ मेगास्पोर प्रोडक्शन. जैसा कि मैंने कहा कि इस एंथर से माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है स्टेमेन इज द साइट ऑफ माइक्रोस्पोर प्रोडक्शन. और जैसा कि मैंने कहा
कि ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरेंजिया न्यूसीलस पाए जाते हैं जिससे मेगास्पोर जनरेट होते हैं एंड इट इज पार्ट ऑफ कार्पेल. सो कार्पेल इज द साइट ऑफ मेगास्पोर प्रोडक्शन. तो स्टेमन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं. अब हम आते हैं इसके कार्पेल की तरफ जिससे मेगास्पोर्स जनरेट होते हैं. अ कार्पेल इज द इनरमोस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. It generates megaspores. The top of the carpel there is a sticky knob known as a stigma. There is a long tube-like portion known as a style. Style leads into ovary. An ovary contains one or more immature seeds known as ovule. The carpel encloses ovules within an ovary in flowering plants. तो carpel के अंदर ovary और dear students ovary के अंदर ovule. A large megaspore mother cell is present within ovule. अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ओव्यूल के अंदर एक डिप्लॉइड सेल पाया जाता है, मेगास्पोर मदर सेल. और डियर स्टूडेंट्स इस मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स जनरेट होते हैं मियोसिस में. इस प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. नाउ यू सी दिस मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस. This megaspore mother cell undergo meiosis to produce 4 haploid megaspores. This megaspore mother cell divide by meiosis to produce how many? 1, 2, 3, 4. 4 megaspore. This is linear tetrad. Megaspore in linear tetrad. अब dear students ये जो 4 megaspore generate हुए हैं इनमें से 3 degenerate हो जाएंगे, सिर्फ एक functional रह जाएगा. 1 megaspore develops into female gametophyte. 3 degenerate हो जाएंगे, सिर्फ एक फंक्शनल होगा जो कि फीमेल gametophyte embryonic sac में चेंज होगा. Now development of female gametophyte embryo sac. Dear students, angiosperms के फीमेल gametophyte को embryo sac कहते हैं. उसमें 7 सेल होते हैं, उनमें से एक एग होता है. Now this megaspore mother cell divide by meiosis to produce tetrad. This is linear tetrad of megaspore. मैंने कहा कि 3 degenerate हो जाएंगे. 1 megaspore remain functional while the rest 3 degenerate. Now you see this is functional megaspore. बाकी 3 आप देखिएगा degenerate हो जाएंगे. The remaining 3 megaspore are degenerated. 3 इस वजह से degenerate हो जाते हैं ताकि सिर्फ एक functional रह जाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा food store हो, क्योंकि आगे चलकर इस फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, एम्ब्रियोनिक सेक, उसके अंदर एग होगा, एग से जाइगोट या एम्ब्रियो डेवलप होगा, तो उसको फूड सप्लाई चाहिए. सो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हेल्दी फीमेल गेमेटोफाइट 1 मेगास्पोर रिमेन फंक्शनल. डियर स्टूडेंट्स, अब इस मेगास्पोर में एक फंक्शनल है, इसमें 3 माइटोसिस होंगे, 3 न्यूक्लियर डिवीजन्स होंगे. Now the functional megaspore undergoes 3 mitotic divisions, also called free nuclear divisions. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स ऐसे डिवीजन्स को कहा जाता है जिसमें न्यूक्लियस तो डिवाइड होता है मगर उसके ऊपर साइटोप्लाज्म का पार्टीशन नहीं बनता. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स, divisions of the nucleus without partitioning of the cytoplasm into separate cell. Now look at here. This functional megaspore divide by free nuclear division. This is first mitosis producing 2 nuclei. This is called 2 nucleate stage, 2 nucleus stage. अब ये 2 nuclei divide होंगे 4 में. Second mitosis and that produces 4 nuclei. Now this stage is 4 nucleate stage. अब dear students 4 divide हो जाएंगे 8 में. This is third mitosis producing 8 nuclei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब क्या होगा कि इनके ऊपर पार्टीशन बनेगा साइटोप्लाज्म का. ठीक, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे. This 8 nucleated stage undergo partition stage. The final step in the development of embryonic sac will be partitioning of the cells. Finally, the cytoplasm of the embryonic sac is partitioned into 7 different cells. देखें ये 8 न्यूक्लियाई थे, इसमें पार्टीशन बनेंगे साइटोप्लाज्म के और 7 सेल रह जाएंगे. Here you see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब आपको हर न्यूक्लियस के ऊपर साइटोप्लाज्म का पार्टीशन नजर आएगा. This mature embryonic sac is female gametophyte with 7 cells and out of 7 cells this one is egg. As it produces egg it is called female gametophyte.
आपको टॉप पे 3 एंटीपोडल्स नजर आएंगे। These 3 haploid cells are called antipodal cells. अक्सर स्टूडेंट्स का फंक्शन पूछते हैं, its function is still unknown. उसके बाद देखिए सेंटर पे एक लार्ज सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। So in the center there is a large central cell containing 2 polar nuclei, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल्स होते हैं जिसमें 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग होता है। Now 2 polar nuclei eventually fuses with a sperm to make 3 angiosperm. Dear students, angiosperm में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एक स्पर्म जब इस लार्ज सेंट्रल सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं उससे फ्यूज होता है तो ये एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम आते हैं एग एपरेटस की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 सेल्स पाए जाते हैं, इन तीनों को मिलाकर के कहा जाता है एग एपरेटस, जिसमें एक एग होता है और दूसरा स्पर्म इस एग से मिलेगा, ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। द एग सेल फ्यूजेस विद स्पर्म टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। बाकी रह गए 2 सिनर्जिड्स, सिनर्जिड 1 एंड सिनर्जिड 2। तो अक्सर स्टूडेंट्स इसका फंक्शन भी पूछते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज फंक्शन ऑफ दीज सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स अट्रैक्ट एंड गाइड पोलन ट्यूब टू द एग। ये 2 सिनर्जिड्स पोलन ट्यूब को, जिसमें 2 स्पर्म्स होते हैं, गाइड करते हैं एग की तरफ। एक स्पर्म फ्यूज होगा एग से, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, और दूसरा सेंट्रल सेल से जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, तो इससे एंडोस्पर्म मिलेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, हमने फीमेल गैमेटोफाइट तक कवर कर लिया है। अब हम आते हैं मेल गैमेटोफाइट की तरफ, जो कि पोलन ट्यूब है, और पहले स्टेमेन से माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, फिर माइक्रोस्पोर से पोलन ट्यूब बनेगा। स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टार्ट क्यों? Stamen is the male reproductive part of flower. The stamen has 2 parts, anther and filament. Stamen के 2 parts होते हैं, anther and filament. Dear students, ये anther part है और ये उसका filament है। Now anther is the first part of stamen. Here you see filament that supports the anther, filament part. डियर स्टूडेंट्स, एंथर से माइक्रोस्पोर्स जनरेट होंगे। माइक्रोस्पोर पहले मदर सेल, उससे माइक्रोस्पोर्स जनरेट होंगे, फिर उससे इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन डेवलप होगा, और पॉलिनेशन के बाद उससे मैच्योर मेल गैमेटोफाइट पोलन ट्यूब डेवलप होगा। सो स्टेमन इज हैविंग 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन कंप्राइजिंग फिलामेंट एंड एंथर। अब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे। आप देखोगे क्रॉस सेक्शन में एंथर के अंदर 4 पोलन सेक्स माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर, अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एंथर शोइंग 4 पोलन सेक्स, 1 2 3 4। हियर यू सी 1 पोलन सेक नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर सेल्स पाए जाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ईच स्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम इज हैविंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो ये भी डिवाइड होंगे मियोसिस के थ्रू। Anther contain pollen sacs, which in turn contain microspore mother cells, also called pollen mother cells, क्योंकि इनसे pollen grains produce होते हैं। अब हम आते हैं pollen grain की development की तरफ। This is cross section of anther showing 4 pollen sacs. This is 1 pollen sac known as microsporangium. Each pollen sac or microsporangium contain many microspore mother cell. Now each microspore mother cell undergo meiosis to produce how many microspores? Tetrad of microspores, 4. This is 1 microspore mother cell divided by meiosis to produce tetrad of microspores. अब डियर स्टूडेंट्स, ये चारों फंक्शनल हैं, इसमें कोई डिजेनरेट नहीं होगा। Each microspore then divides to produce its own pollen grain. हर एक से अलग अलग pollen grain डेवलप होगा। This is 1 microspore divided by mitosis to produce 2 cells. The first division produces 1 tube cell and second generative cell. देखें, फर्स्ट माइटोसिस में माइक्रोस्पोर से 2 सेल्स जनरेट हुए, दोनों हैप्लॉइड हैं। वन इज नोन एज ट्यूब सेल, अदर इज नोन एज जनरेट सेल। और डियर स्टूडेंट्स, इस 2 सेल स्टेज पे इस पोलन ग्रेन को पॉलिनेशन के लिए रिलीज कर दिया जाता है। नाउ दिस पोलन ग्रेन इज इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट बिकॉज येट इट हैज नॉट प्रोड्यूस्ड स्पर्म्स। अब इसको रिलीज कर दिया जाएगा पॉलिनेशन के लिए। इट्स आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन, इट्स इनर लेयर इज कॉल्ड एंटाइन। इन एंजियोस्पर्म
pollen grains are released at two-celled stage for pollination. अब हम आते हैं पॉलिनेशन की तरफ। ये जो 2 सेल वाला पोलन ग्रेन था ये एंथर से स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड pollination. 2 types of pollination, self pollination and cross pollination. In self pollination only one flower is involved. In cross pollination 2 flowers are involved. What is self pollination? Transfer of pollen grains from anther to the stigma of same flower. What is cross pollination? Transfer of pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower of the same species. After pollination, when pollen grains are landed on a stigma, they germinate to produce pollen tube, mature male gametophyte. Dear students, जैसे ही यहाँ से एंथर से पोलन ग्रेन्स लैंड करेंगे कहाँ पे? स्टिग्मा पे, तो वो जर्मिनेट होंगे पोलन ट्यूब में जो कि मैच्योर मेल गेमेटोफाइट है। अब हम आते हैं मैच्योर मेल गेमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, मैच्योर मेल गेमेटोफाइट। आफ्टर पॉलिनेशन जो कि ट्यूब सेल था उससे पोलन ट्यूब बनेगा, ट्यूब सेल एलोंगेट टू फॉर्म अ पोलन ट्यूब, और जो दूसरा जनरेटिव सेल था उससे 2 स्पर्म बनेंगे। जनरेटिव सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमीट्स नोन एज स्पर्म सेल। डियर स्टूडेंट्स, जब ये पोलन ग्रेन लैंड करते हैं स्टिग्मा पे तो ये जो ट्यूब सेल है ये एलोंगेट होगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, और फिर जो दूसरा जनरेटिव सेल है इट विल डिवाइड टू फॉर्म 2 स्पर्म सेल्स। दिस इज मैच्योर मेल गेमेटोफाइट नोन एज पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब का रोल है फर्टिलाइजेशन में। डियर स्टूडेंट, जैसे ही ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं, एक्साइन रप्चर हो जाता है और ये जो पोलन ट्यूब डेवलप होता है ये पोलन ट्यूब सेल से, और इसमें जो 2 मेल गैमीट पाए जाते हैं वो जनरेटिव सेल से बनते हैं। और इस पोलन ट्यूब के बनने की जो मेन वजह है, इट कैरीज स्पर्म टू द ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोनिक सेक होता है जिसके पास एग होता है। सो पोलन ट्यूब इज अ सोर्स और व्हीकल टू टेक द मेल गैमीट्स टू द ओव्यूल। ये ओव्यूल के एम्ब्रियोनिक सेक की तरफ स्पर्म्स को डिलीवर करता है। फर्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब इज कॉल्ड सैफेनोगेमी। अब हम आते हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। कौन से प्रोसेस? पोलन ट्यूब के थ्रू, इसको कहते हैं सैफेनोगेमी। सैफेनोगेमी इज डिफाइंड एज फर्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो पोलन ट्यूब के हेल्प से होता है उसको सैफेनोगेमी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये मैच्योर एम्ब्रियोनिक सेक है जिसमें कितने सेल्स पाए जाते हैं? 7 सेल्स। एम्ब्रियोनिक सेक इनसाइड एन ओव्यूल, तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होगा। जब पोलन ट्यूब स्पर्म कैरी करेगा तो एक स्पर्म फ्यूज होगा एग से। टॉप पे आपको एंटीपोलर्स नजर आएंगे, बीच में एक सेंट्रल सेल नजर आएगा जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, और नीचे आपको 3 सेल नजर आएंगे जिसमें से 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल। तो डबल फर्टिलाइजेशन में एक स्पर्म फ्यूज होगा एग से और दूसरा स्पर्म फ्यूज होगा सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई से। इस प्रोसेस को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। When both sperms in pollen tube reaches inside an ovule, one sperm unites with the egg to form diploid zygote and the other sperm unites with the polar nuclei of the central cell to form triploid एंडोस्पर्म। देखें, जब पहला स्पर्म इस एक से मिलेगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डिप्लॉइड जाइगोट, और जब ये दूसरा स्पर्म इस सेंट्रल सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं इससे फ्यूज होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म जो कि 3N है। After double fertilization, ovule develops into seed containing baby plant embryo, a nutritive tissue, angiosperm, and seed leaves known as cotyledons. This is the structure of seed, angiospermic seed. After fertilization, ovule develops into seed, and integuments of the ovule changes into seed coat. यहाँ पे आपको अंदर एक बेबी प्लांट नजर आएगा, एम्ब्रियो, जिसके टॉप पोर्शन को प्लूमिल कहा जाता है और बेस पोर्शन को रेडिकल कहा जाता है। अब हम डिफाइन करेंगे प्लूमिल को। व्हाट इज प्लूमिल? टिप ऑफ द एम्ब्रियो, इससे शूट डेवलप होता है। सो प्लूमिल इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक शूट। अब हम आते हैं रेडिकल की तरफ जिससे रूट डेवलप होता है। नाउ रेडिकल, बेस ऑफ द एम्ब्रियो, इट डेवलप्स इनटू रूट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक रूट। अब हम आते हैं कॉटलीडॉन्स की तरफ। What are cotyledons? These are the seed leaves attached to the embryonic axis. और डियर स्टूडेंट्स, ये cotyledons एंडोस्पर्म से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लूमिल को भी सप्लाई करते हैं और रेडिकल को भी सप्लाई करते हैं, और जो हिस्सा कॉटलीडॉन के ऊपर है उसको एपिकोटाइल कहते हैं।
part of the embryo just above the cotyledon is called epicotyle, और एम्ब्रियो का वो पोर्शन जो कोटिलीडॉन्स के नीचे है उसको क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल. हाइपोकोटाइल इज पार्ट ऑफ एम्ब्रियो जस्ट बिलो द कोटिलीडॉन्स. और फाइनल स्टेज में ये सीड जर्मिनेट होगा, इससे एम्ब्रियो बाहर आएगा, न्यू स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ लाइफ साइकिल. सीड जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस सीडलिंग. व्हाट डू यू मीन बाय सीडलिंग? A young sporophyte plant. So this ends the life cycle of an angiospermic plant. So dear students, today we have covered the life cycle of an angiospermic plant. Thank you dear students, wish you all of the best.